So welcome to all of you on the Grammar Day, and today we are going to discuss a very important topic that is called the modal verbs. Okay? Modal verbs. Have you heard this word before? Modal verbs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होते हैं? Could, would are models. होते क्या हैं? ये तो examples हैं. Uh, All the मतलब examples. Why we need मतलब the modal verbs? Why we need the modal verbs? it Actually, makes ma'am, in order to sentence more effective. Okay. Yes, Mausina? Let's say, when we want to say something special which requires some extra feeling, like which is also showing some mood. This is just my prediction. So that may be because it gives another form to the action. Right. So basically, देखो, there are the two types of verbs basically. One is called the main verbs, जो totally depend करता है हमारे tenses के ऊपर. What is the time? Which denotes a time. And second आता है कि that shows some abilities, permission, request, obligations, suggestions, permissions. So if these types of moods are coming at the time of speaking, for that purpose, we have to use the modal verbs. Okay, so now we are going to start the modal verbs. So modal verbs, today we are going to discuss 10 important modal verbs. The verbs that generally use before the main verbs. ये modal verbs कहाँ पर place किए जाते हैं? Before the main verbs. Main verbs से पहले लगाए जाते हैं. किस लिए? To express the ability, permissions, necessities, suggestions. For all these purpose, we have to use the modal verbs. And where we have to place the modal verbs? Just before the main verb, just before the main. Okay. So there must be the two verbs in a sentence. One should be the modal verb and second should be the main verb. Now, what are the modal verbs which we are going to discuss? All these modal verbs today yes. we are going to discuss. Can, could, may, might, will, shall, would, should, must, ought to. All these modal verbs today we are going to discuss. Okay. Now, modal verbs के uses क्या है? What are the uses of the modal verbs? Modal verbs are used for the ability, for the probability, or we can say for the possibility, for the permission, for request, for talking about the future, for the offers, for invitations, for suggestions and obligations, and for imagination. These are the some very great uses for the modal verbs. आपको कोई ability आपको show करनी है. If you want to show any ability, if you want to offer Can. any invitations, if you want to request, if you want to imagine. So in sub condition में you have to use the modal verbs. अब क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में, if we are talking about the ability, so which modal verb we have to use? If we are talking about the permission, so then which modal verb we have to use? If we talking about the future, so then which modal verb we have to use? Okay, clear? Yes, ma'am. Now, first is asking the permission. Asking the permission. If you want to ask the permission, so we have to use the three modal verbs. Can, may, could. Yeah. Can, may, could. If you want to ask the permission, so then we have to use the three modal verbs. Can, may, could. अब question आता है कि in which situation you have to use can, in which situation you have to use may, in which situation you have to use could. Can I use your pen? ये परमिशन है. क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? ये मैं एक परमिशन मांग रही हूं उससे. अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैन, इफ यू आर यूजिंग मे, इफ यू आर यूजिंग कुड, देखो तीनों ही मॉडल वर्ब्स हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन कैन हम यूज करेंगे गाइस इन अ वेरी इनफॉर्मल एनवायरमेंट. इनफॉर्मल में सपोज करो मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ कि यार मैं क्या आपका पेन यूज कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं अपने कलीग से कह रही हूँ, मतलब अपने फैमिली मेंबर से किसी से कह रही हूँ, अपनी सिस्टर से कह रही हूँ. सो वेरी इनफॉर्मल एनवायरमेंट. इन दैट केस आई हैव टू यूज कैन. बट इफ आई एम आस्किंग द परमिशन in a more formal or in a more polite way, so then I have to use which modal verb? May. Suppose I'm asking the permission from my colleague.
ठीक है, फॉर्मेलिटी है कलीग के साथ, आई एम नॉट सो मच ओपन विद दैट कलीग, सो देन आई कैन आस्क मे आई यूज योर पेन। एंड could हम यूज करेंगे when there is more formal environment and we must be very polite. Suppose करो you are sitting along with your HOD or you are sitting along with your boss, so then the environment is very formal, you must be very polite, so in that case you can say could I use your pen, sir, could I use your pen? ठीक है, so these are the three possibilities, permissions. अब सपोज करो you are in the neuroscience batch and sometimes the sir forgot to share the recording. हम क्या लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे सेशन, हम ये लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे सेशन, बट करेक्ट ग्रामर क्या होना चाहिए था, बिकॉज वी आर Could you टॉकिंग please? हाँ, कुड यू Could प्लीज you प्रोवाइड please? द रिकॉर्डिंग, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग। गाइस देखो, कुड यूज करो, कैन यूज करो, मे यूज करो, ऑल द थ्री मैडम वर्ब्स आर would करेक्ट। मैडम वुड भी तो यूज करते हैं ना पोलाइट के नहीं लिए, वुड। नहीं नहीं, वो वुड अलग है, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओके परमिशन। परमिशन के लिए हम कैन, मे और कुड यूज करते हैं। ओके, ओके so ओके if मैम। you are writing can you please share the recording, this is also right, I'm not saying this is wrong, but it represents the intention, in which यस intention मैम। you are saying. If you are using could, so it means that you are in a very polite manner. Okay, clear? यस मैम, एब्सोल्युटली। नाउ गिव परमिशन, अगर सपोज करो आपको परमिशन देनी है किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल, यस यू कैन यूज माय पेन, यस यू मे यूज माय पेन, सॉरी यू कैन नॉट यूज माय पेन, इन दैट सिचुएशन में आप कुड का यूज नहीं करेंगे, इधर मे और कैन आप यूज करते हैं इफ यू आर गिविंग द परमिशन। हाँ, आप ये कर सकते हैं, यस यू कैन यूज माय पेन, यस यू मे यूज माय पेन, सॉरी यू कैन नॉट यूज माय पेन, बस ये तीन सिचुएशंस यूज हो। परमिशंस के लिए कैन, मे, कुड। कैन आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड, कुड आई गो आउटसाइड, वी आर टॉकिंग, वी आर आस्किंग द परमिशन, सो वी कैन यूज द these three situations, कैन आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड, कुड आई गो आउटसाइड। ठीक है, आस्किंग फ्रॉम द मम्मा, आस्किंग टू मम्मा, सो मम्मा क्या आंसर करेंगी, आंसर आएगा you cannot go, you cannot go outside, you may not go outside, but you cannot say you couldn't go outside, you couldn't go outside नहीं बोलेंगे, नेगेटिव में सिर्फ आप कैन नॉट और मे नॉट का यूज करेंगे। अब यहां पर भी डिफरेंस आ गया कि इन विच सिचुएशन यू हैव टू यूज कैन नॉट, इन विच सिचुएशन यू हैव टू यूज मे नॉट। कैन नॉट आप जनरल उसमें बोल रहे हो, बट इफ यू आर यूजिंग यू मे नॉट गो, इसका मतलब आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि आप नहीं जा सकते। बट इफ यू आर सेइंग यू कैन नॉट गो, तो ठीक है, चिल पिल है, जा भी चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर सेइंग यू मे नॉट गो, इट मीन्स you are emphasizing that you are not allowed to. Only this is the difference between these two. Clear? Clear, everyone? यस मैम। Okay. Now we are talking about the abilities. First, second is when we talking about the ability. Ability का मतलब होता है capability. मैं ये काम कर सकती हूँ. When we are showing our capability, then we have to use. देखो, ability का मतलब होता है skill, any skill. Skill can be the specific, skill can be the general. ठीक है? There are the two types of skills. Skill can be the specific also, skill can be the general also. We use can and could whenever we talk about the ability. So we have to use can or could. Ability कौन show करता है? Can and could. Can and could shows the ability. I can speak 2 languages. ये मेरी एक ability है कि मैं 2 languages बोल सकती हूँ. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I can speak 2 languages. प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में I could speak fluent English when I was little. देखो, could जो है, could modal verbs tells you about the ability, but the ability that was your past ability.
दैट वाज योर पास्ट एबिलिटी। मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था तब मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था, तो इट वाज माय एबिलिटी, बट एबिलिटी वाज इन द पास्ट। आई कैन परफॉर्म माई डांस टुमारो, दिस इज अ फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे कैन, प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे कैन, पास्ट के लिए हम यूज करेंगे कुड। Good. कैन यू मेक एनी सेंटेंस ऑफ कुड? Yes, ma'am. बनाओ। Okay. Would you please give me a this answer sheet? We are talking about the ability. We are talking about the Okay. ability. Okay, with ability. Okay. I okay, past. Okay. I could Any ability, any ability. Yes, Priyamda. I could play football when I was young. Very nice, very nice. I could play football. I could play football when I was young. When I was young. Very nice. Mridul, any one sentence from your end? Okay. Hello. I could run when I used to make exercise. When I could run when I could run when I Used to make exercise. used to make exercise. Okay, because that was your past habit. That was your past habit. Yes, ma'am. Mohsina? Yes, ma'am. I could write poems before 5 years. I could write poems before 5 years. Very good. I could write poems in my college days. I could write poems in my school days. Okay. ma'am, I could हाँ बोलो दीप्ति। I could perform 100 Surya Namaskar when I was very regular. When I was very regular. Very good, very good, very good. Great. Now, if you are talking about the negative ability मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता, नेगेटिव है, मैं मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मैं कुकिंग नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू कुकिंग, आई कैन नॉट ड्राइव। सो कैन नॉट आप यूज करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, एंड कुड नॉट यूज करेंगे पास्ट। आई कैन नॉट स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट। I couldn't speak fluent English when I was little. जब मैं छोटी थी तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, सो आई couldn't. I cannot perform my dance tomorrow. अगर पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है तो कैन एंड कुड, नेगेटिव है तो कैन नॉट और कुड नॉट। क्लियर? So I cannot dance. May I ask you a question, ma'am? Yes, Mridul. Actually, when there is a probability, there has any probability to can do something like that. He could ability to do so. He could ability to do so. He He could ability. he He could could ability. ability. He could have ability to do so. मृदुल, ही कुड हैव एबिलिटी का मतलब था वो एबिलिटी थी, बट दैट वाज इन द पास्ट टेंस, अब नहीं है। करंट सिचुएशन में ही डजंट हैव दैट एबिलिटी। If we are talking about the could always talking about the past ability. Past ability. मैं वो काम कर सकता था जब मैं छोटा था, मैं तेज भाग सकती थी जब मैं छोटी थी। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज स्मॉल, दैट वाज द पास्ट एबिलिटी। Yes. मैम, ये कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना, उसमें यूज नहीं कर सकता है कि कुड नहीं कर सकते, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कंडीशनल टाइप 2 टाइप 3 में हम यूज कर सकते हैं,
But right now we are just talking about the abilities, simple general abilities की अगर हम बात करते हैं, if we talking about the present and the future abilities, put can. If we talk about the past abilities, put could. नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. देर इज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज अ चांस. सो पॉसिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही होगी. पॉसिबिलिटी विल ओनली हैपेंस ईदर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, क्योंकि पास्ट में तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, बिकॉज पास्ट तो हो चुका है. So then we have to use may, might and could. देखो, this is not hard and fast rule कि that modal verbs contains only one use. Modal verbs has multiple usages also. Like for example, अब could जो है वो दो सेंस में यूज हुआ. could हमारा पास्ट एबिलिटी में भी यूज हुआ और could हमारा यहाँ पर पॉसिबिलिटी में भी यूज हो रहा है. Right? So you have to keep into your mind कि in which situation you have to use that modal verbs. अब Actually, I told that things actually, ma'am. हाँ हाँ हाँ. Right, I right. wanted to told that thing. Okay, okay. So now here we are talking about the probability. If there is a high possibility in the future, so then we have to use may. If there is a low possibility in the present, then we have Might. to use might. If there is a low possibility in the future, could. And if there is a low possibility in the present, so then we have to use could. तो अब आपको क्या याद रखना है? सिंपल याद रखो. देखो, अगर हाई पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी का मतलब है इफ द चांसेस आर 80 to 90% और द 100%. 100% तो नहीं होता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी. इफ द चांसेस आर 80 to 90% future, we have to use may. But if there is a low possibility, so then you can use might or could. Okay? She may come by car. वो कार से आएगी. श्योरिटी है, 90% चांसेस हैं कि वो कार से ही आएगी. ठीक है? So you can say she may come by car. If the chances are very high. Suppose today weather is very stormy, weather is very bad, and बड़ा cloudy weather है. The weather is very cloudy. Possibility are very high कि बारिश होगी ही होगी. तो कैसे बनाऊंगे उसको इंग्लिश में? Today weather is very wet, very cloudy. There may be a possibility of rain. हाँ, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बस यूज करना. There may be rain. It may rain today. अगर आपने जैसे ही बोला ना इट मे रेन टुडे, तो ये अंडरस्टूड है कि चांसेस आर वेरी हाई कि दैट रेन विल कम. रेन आएगी ही आएगी. It might come. Rain. It may rain today. It might rain today. It might rain today का मतलब है chances are less. Yes. Chances are less. It could be rain today. It means the chances are less. ठीक है? So जितना easily अपना remember आप कर सकते हो वो याद. Impossibility. अगर सपोज करो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबिलिटी है, सो देन वी हैव टू यूज कैन नॉट. इट कैन नॉट बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू. ठीक है? अगर वो नहीं हो सकता तो सिंपल आप यूज कर दो सिर्फ एक मॉडल वर्ब, दैट इज कॉल्ड कैन नॉट. क्या पास्ट हो या फ्यूचर हो? हाँ, कैन नॉट यूज कर दो. प्रोबेबिलिटी तो डियर पास्ट में होता ही नहीं ना. प्रोबेबिलिटी या तो प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है. यस. तो आप हमेशा कैन नॉट यूज करेंगे. Must and should. There are the two modal verbs, must and should.
अब कहाँ पर हमने मस्ट का यूज करना है, कहाँ पर हमने शुड का यूज करना है? इफ यू रीड द सेंटेंसेस, शी मस्ट बी एट होम, यू मस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट, शी Yes. शुड अराइव सून, she should not, you should not drink cold water, you must be hungry. Must and should both are used for the suggestions. Must and should both are used for the suggestions. ठीक है? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि जब वो जरूर जरूर नेसेसिटी आ जाती, जरूर होगा, पक्का ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो होगा ही होगा, वह जरूर घर होगा. Okay. he must be at home, he must be at home. और सजेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ड्राइविंग करते वक्त अपनी सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए. यू मस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग. whenever we are talking about the necessity, जरूर जरूर वर्ड आ गया, so then you have to use must. Ma'am, one question related to this picture that is already shown. You must be hungry, beta. हाँ, What the? यू मतलब तुम जरूर भूखे होंगे. ठीक है, तभी तो वो उसने तलवार वलवार निकाल ली है. ठीक है, तो मतलब यू मस्ट भी, मतलब उसे मान लिया कि तुम जरूर भूखे होंगे, तभी वो सीधा उससे पूछा नहीं है. प्रेमदा देखो, उससे पूछा नहीं है. यू शुड बी हंग्री नहीं बोला उसने, उसने तो मान ही लिया है कि वो जरूर भूखा होगा. सो दैट्स व्हाई ही इज कमिंग अलोंग विद द फूड. ओके, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द जरूर नेसेसिटी है, वो होगा ही होगा, then you have to use must. But if you are giving the suggestions, so then you can use should. रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी, अब देखो रिक्वेस्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लेस पोलाइट और एक होते हैं पोलाइट. Request is also of two types. One is less polite and one is polite. Asking for something. अगर हम कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, we are asking, we are requesting. So then we have to use can, could, will, would. If we are talking about the request, if we are asking something, if we are requesting something, so in that scenario, we have to use four modal verbs: can, could, will, would. अगर हम बात करते हैं, we are asking something but in a very polite manner, so then we have to use could. If we are asking something but in a non-polite manner, then you have to use can. If we are asking something in a non-polite manner, then you have to use will. If you are asking something in a polite manner, then you have to use would. Could you dat me for me, please? Or would you please help me to reach this location? So guys, just keep this thing into your mind. Whenever you are asking something, whenever you are requesting someone, so you have to put either could or would or can or will. Can or will you have to use in a non-polite manner, and could and would you have to use in a polite manner. Yes, Mosina, you want to ask something, dear? Yes, ma'am. Ma'am, is it necessary to use please? नहीं, प्लीज नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड का मतलब ही पोलाइट है. वुड जी. इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ पोलाइट, सो नो नीड, नो नीड. Could you do that for me? Would you help me to reach this location? That is also okay. That is also okay, Okay. but in a very polite situation. Okay, ma'am. And Yes, if you, ma'am. हाँ, if you are talking to a non-polite way, ठीक है, सपोज करो मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ मेरे गिलास पानी ला दो, सो मैं सिंपल बोलूंगी एक गिलास पानी ला दो. कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? बट अगर सपोज करो मेरी कलीग बैठी है साथ में और मैं अपनी कलीग से कह रही हूँ कि कैन यू पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दैट डजंट साउंड गुड. सो व्हाट आई कैन से, कुड यू पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मेरे को आप पानी का ग्लास पास कर सकते हो? जी, मैम.
ठीक है, और मैम हाँ। जी मैम, कभी ऐसा भी होता है कि एट द एंड प्लीज भी होता है, उसके आगे वो कोमा लगाकर भी क्वेश्चन वो प्लीज होता है, तो वो दोनों यानी बीच में भी चलेगा, एंड में भी चलेगा? हाँ 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 हाँ, वो डेट इज ओके, परफेक्टली ओके। प्लीज आप चाहे एंडिंग में लगा दो, चाहे इन बिटवीन लगा दो, ओके। that is okay. But just keep this thing into your mind. Can and will you have to use in the non-polite manner, and could and would you have to use in a polite. जी मैम, और मैम ऐसा यानी फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है? नहीं देखो, सभी। नहीं नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल का ही सारा खेल है मौसीना। पोलाइट जी जो है, पोलाइट जो है, आप किस सिचुएशन में, आप किस एनवायरनमेंट में यूज करोगे? फॉर्मल फॉर्मल। एनवायरमेंट। जी जी, एंड बिल्कुल बिल्कुल नॉन सही है। पोलाइट आप यूज करेंगे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। जी सही है। ठीक है, तो चाहे इसको जी पोलाइट कह दो, चाहे इसको फॉर्मल एनवायरनमेंट कह दो, बात एक ही है। जी जी जी। टॉक अबाउट द फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, सो देन वी हैव टू यूज विल एंड शेल। विल एंड शेल, विल हम यूज करते हैं ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ, एंड शेल हम यूज करते हैं आई और वी के साथ। आई एंड वी के साथ वी हैव टू यूज शेल। कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, मतलब देखो, अगर चांसेस आर वेरी हाई, 90% चांसेस है कि कल बारिश होगी, तो आप क्या बनाएंगे सेंटेंस को? इट, Rain tomorrow. इट, Will rain tomorrow. नो। It shall. Yeah. We didn't. No. चांसेस आर वेरी हाई कि बारिश होगी ही होगी। It could. It could No. rain. इट मे रेन टुमारो, Yes, ma'am. It may. इट मे रेन टुमारो। बट अगर आपने कह दिया हाँ कल बारिश होगी, ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते, सो देन यू कैन से इट विल It might. रेन। हाँ, इट और माइट मैडम हो might. गया, इट विल हो गया, देन यू कैन से। लेकिन अब यहाँ पर आप इट शैल रेन टुमारो नहीं बोलूंगी, दैट इज रॉन्ग। इट के साथ यू हैव टू पुट विल, आई एंड वी के साथ यू हैव टू पुट शैल। Only with IS. कल Can मैं be. शॉपिंग के लिए जाऊंगी, कल मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, क्या बनाऊंगी इसको? Tomorrow I will go to shopping. टुमारो, जाऊंगी. आई शैल बना सकते हो। टुमारो आई शैल गो फॉर शॉपिंग। Nice. आई और वी के साथ शेल, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ यू कैन यूज विल, बट नाउ अ डेज वी हैव टू यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, so वो भी ओके। मैडम वो पहले हमने पढ़ा था कि जब डिटर्मिनेशन हो करना ही है तो आई के साथ हम विल यूज कर लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, नाउ अ डेज वी कैन यूज विल विद ऑल द सेंटेंसेस, बट अगर आई के साथ विल कर रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि डैट वी विल डू दैट वर्क। चांसेस आर वेरी हाई डैट वी विल डू दैट वर्क, मतलब प्रोबेबिलिटी इज हाई। ऑफर्स, इफ वी आर गिविंग द ऑफर्स, ऑफर्स के लिए हम यूज करते हैं शैल और कैन। शैल एंड कैन वी हैव टू यूज फॉर द ऑफर्स। Can I help you? Shall I help you? What is the difference between these two sentences? Shall I help you? Can I help you? In both the situation we use, हम क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हिंदी में दोनों का मतलब एक है, but in this situation you have to use can I help you, and when you have to use shall I help you. देखो, can I help you का मतलब होता है परमिशन। You are asking, is it possible to do it? मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, परमिशन हम दे रहे हैं। कैन वी गो फॉर अ वॉक, कैन वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक पे चल सकते हैं? तो आई एम जस्ट टेकिंग द परमिशन। एंड सपोज करो, इफ आई एम सेइंग शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू का मतलब होता है सजेशन। आई एम मेकिंग अ सजेशन एंड आई वांट टू नो कि व्हाट यू थिंक। Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? मतलब I'm just giving this as a form of suggestion. मैं एक सजेशन दे रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। So in that situation we have to use shall, otherwise we have to use can. Can यूज करेंगे परमिशन के लिए, shall यूज करेंगे सजेशंस के लिए। क्लियर? इनविटेशन के लिए हम यूज करते हैं would. Guys, I know this is a little tricky topic, but once you go through again this topic, na, it would be a piece of cake for you. Okay,
नाउ वुड का क्या यूज होता है इनविटेशन के लिए? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप कप ऑफ टी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद मी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? वेयर वुड यू लाइक टू गो मैम? ठीक है, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द इनविटेशन, इनवाइट, देन वी हैव टू यूज वुड। आप कॉफी लेना पसंद करेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे? बनाओ इसकी इंग्लिश। Would you like to have coffee or tea? Very good. Would you like to have coffee or tea? Would you like to have coffee or tea? आप वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे या मूवीज देखना पसंद करेंगे? Would you like to watch more web series और मूवीज? or movie? मूवीज। नेक्स्ट आता है आपका सजेशंस और ऑब्लिगेशंस के लिए। सजेशंस के लिए वी हैव टू यूज शुड, ought to और मस्ट। शुड, ought to और मस्ट। वी हैव टू यूज शुड, ought to और मस्ट। You should learn English. You should tell the truth. You ought to tell the truth. You must tell the truth. पढ़ के लग रहा है कि सब सेम है, कहीं पर भी शुड लगा दो, कहीं पर भी मस्ट लगा दो, कहीं पर भी ought to लगा दो। आपको you should tell the truth, you ought to tell the truth, you must tell the truth. Now guys, what is the difference between these three sentences? In which situation you have to use should, in which situation you have to use ought to, in which situation you have to use must? देखो, see, read this sentence. देखो गाइस, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज शुड। मतलब सजेशन हम दे रहे हैं, लेकिन वो सजेशन किसको दे रहे हैं? पर्सन की खुद की, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला, ये एक हम सजेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, आपको अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर गिविंग द सजेशन बट फॉर टू द पर्सन, इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज शुड। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉरल ड्यूटी है ये मेरी, देन आई हैव टू यूज ought to। The students ought to be punctual at school, ये moral duty है, ये नहीं कि कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। No, this is a moral duty for each and every student, that the student ought to be punctual at school. Yes, ma'am. And guys, if it is a necessity, then we have to use must. The students must bring the ID proof in examination. ये necessity है, अगर ये नहीं होगा तो इसके बगैर the students are not allowed to appear in the exams. Now make one sentence of should, ought to and must. Okay. पहले किसका बनाएगा? उसका। One sentence. Yes. You should, We should work hard if we want to be successful. Speak louder. We should work hard if we want to be successful. We should work hard if you want to get succeed in life. Okay. Very good. Priyamda? everyone should have to be humorous about to be humorous towards old age people. Acha, but don't you think so? It's a moral duty. Yeah, it's moral duty towards old people is moral duty or not, ma'am? Yes, it should be. It should be a moral duty. So that's why everyone should be very Nahi, agar moral duty polite hai, so then and you have to use ought to be. ought to be. If you're talking about the moral duty, like for example, जैसे सिंपल एग्जाम्पल, आपको ट्रैफिक रूल्स का ओबे करना चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स का ओबे करना चाहिए। वी आर गिविंग द सजेशन, वी आर गिविंग अ सजेशन, राइट? लेकिन इट इज अ मॉरल ड्यूटी
कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आप मॉरल ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो आप किसी को हर्ट पहुंचा सकते हैं। सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी। तो कैसे बनाओगे? यू, इंग्लिश बनाओ इसका। You ought to follow all Yes, you ought traffic to rules. follow Traffic the rules. traffic rules. You ought to follow the traffic rules. The students ought to be disciplined at the school. Yes, the students ought to be disciplined at the schools. मॉरल ड्यूटी है, लेकिन वो होते नहीं है। ठीक है ना? नेसेसिटी Uh, के केस में, नेसेसिटी के केस में यू हैव टू मेक मस्ट। मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। Ma'am, student ought to stand up when doing the national anthem. Yes, the students ought to stand up when the teachers enters into the class. Moral duty है। The students ought to wish the teacher. And must किस में यूज होगा? Necessity. You must bring ID proof card in your examination. Ma'am, there is a question. Ma'am, we can use must for ourselves as well. For? Suppose if I say I must do that. हाँ, So we can we use must with I and we? हाँ, I must you can use with every subject. Every subject you can use. This is not hard and fast rule कि you cannot use. That is only the shell. Must you can use with every subject whenever you are। देखो must के भी ना दो यूज हो गए मोहसिना। मस्ट एक यूज हो गया नेसेसिटी में, सेकंड हो गया जब वो जरूर के सेंस में। मैं ये काम जरूर करूंगा, चांसेस आर वेरी हाई कि डैट आई विल डू दिस वर्क, सो देन यू कैन से आई मस्ट डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क। Madam, grammar must be, if we want to fluent, then we must know grammar. Yes, very nice. If we want to be a fluent speaker, we must have the good knowledge of grammar. We must have the good knowledge of the grammar because it's a necessity. Every driver must have to bring their ID proof with Yes, them yes, yes, while yes, driving. yes. Right. Now could and would. Past tense में can and will. Possible situation में, possible situations में you have to use could. आप guys यहाँ पर अब हम डिफरेंस कर रहे हैं could and would का। ये मृदुल आपका कंडीशनल सेंटेंस आ गया। पॉसिबल सिचुएशंस हैं, ठीक है। इट कुड रेन टुडे, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। सो देन यू कैन से इट कुड रेन टुडे। वुड हम यूज करते हैं फॉर द इमेजिनरी सिचुएशन। इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बीच। इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं एक बीच खरीद लेता। मैम बस लेकिन ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ आई हैड खरीद लेता, लेकिन मैम ये तो आई हैड यूज किया हुआ है ना। आई हैड है If ना, I लेकिन had- नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन में दिस इज नॉट अ पास्ट टेंस, दिस इज अ स्ट्रक्चर। This is a structure. कि whenever we talk about the imaginary situation, so then we have to use if I had $1 million, I would buy a beach. हैव नहीं यूज करेंगे, हैड करेंगे मैडम। हाँ, V2 फॉर्म यूज करते हैं, वो आपका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके। जैसे सपोज करो एक सेंटेंस है, जैसे अगर मैं एलियन से मिलूंगी, नहीं, अच्छा चलो दूसरा लेते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मैं चांद पर प्रॉपर्टी खरीद लूंगी। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल बट जस्ट वी आर थिंकिंग। सो देन वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस, इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी I would purchase a land on the moon. I would purchase a land on the moon. Yes, ma'am. Okay.
अगर मैं एलियन से मिलूंगी, अगर मैं एलियन से मिलूंगी, मैं उससे बहुत सारा पैसा मांग लूंगी। If बनाओ। I हाँ। if I would had meet alien, नो नो नो, इफ आई के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ बस। मिलने का मतलब if I met हाँ, इफ आई मेट विद एन met एलियन, इफ आई with an मेट विद एन एलियन, alien, आई वुड आस्क लॉट ऑफ ask मनी, I लॉट ऑफ मनी। yes, ठीक है, क्लियर? ये रादर टाइप 2 में आता है, लेकिन ये ठीक। तो इमेजिनरी सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। नाउ पोलाइट एक्सप्रेशंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलाइट एक्सप्रेशन, सो वुड एंड कुड कैसे यूज होते हैं गाइस? कुड हम यूज करते हैं फॉर द सजेशंस के लिए। वी कुड ट्राई न्यूली ओपन चाइनीज होटल, वी कुड ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं नए नए ये जो चाइनीज होटल खुले हुए हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सजेशन, polite expression, so then we can use could. Suppose karo some friends are coming to meet you and you are planning to go out, so then you can say we could try a new open restaurant. Suggestion de rahe ho aap, polite manner. Would you like to have some coffee or tea? Offer. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आप दोनों यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो, वुड भी यूज कर सकते हो। कुड यू ओपन द डोर प्लीज? अब मौसीना यहाँ पर हमने प्लीज लगा दिया है एट द एंड, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वेस्ट। जी परमिशन के मैम। सेंस में, परमिशन के सेंस में यू हैव टू यूज कुड। कुड आई बोरो योर लैपटॉप फॉर फ्यू डेज? क्या मैं आपका लैपटॉप बोरो कर सकता हूँ कुछ दिनों के लिए? सो डू यू हैव टू यूज कुड। इसी सेंटेंस को अगर आपको वुड में बनाना है तो गाइज आपको ये फ्रेज यूज करना पड़ेगा, वुड इट बी ओके। ये आपको, यू हैव टू क्रैम दिस फ्रेज, वुड इट बी ओके इफ आई बोरोड। You can make this sentence in both the ways. Could I borrow? That is also okay. Or would it be okay? This is also. Suppose sentence है, क्या मैं आपकी न्यू ड्रेस पहन सकती हूँ? क्या मैं आपकी न्यू ड्रेस ले Okay. सकती हूँ? बनाओ इसको। Would it be okay? Can I take your Would it be okay? Would it be okay if I borrowed your new dress? if I Borrowed your dress. हाँ, if I borrowed your dress, if I borrowed your dress, or you can say could I borrow? Could I borrow your dress? Both the sentences, the meaning are same. Yeah. गाइज ये मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स भी लिखे हैं, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, होना चाहिए था, करना चाहिए था। तुम्हें मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? तुम्हें मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। चाहिए था की इंग्लिश होती है शुड हैव। यू Yes. शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड Yes. हैव कॉल्ड। वुड हैव की हिंदी होती है कर चुका होगा, कर चुका होगा, वह निकल चुका होगा। अरे मैम अब मैं उसको क्या फोन करूंगी, वो तो निकल चुका होगा। ही वुड हैव। अच्छा गाइज, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव के बाद ऑलवेज यू हैव टू यूज द V3 फॉर्म। Okay, third form of verb. हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज, दिस इज अ रूल। वह निकल चुका होगा, he would have left, he would have left। वो सो चुका होगा। हाँ, He could have slept. he would have slept, he would have slept। Okay. बड़ा could have नहीं लाएगा यहाँ भाई, could have could have slept. नहीं, could have का मतलब होता है कर सकते थे, हो सकता Okay. था। Okay. You could have called me, तुम मुझे फोन कर सकते थे। भाई मेरे को सपोज करो मेरे फ्रेंड का फोन आया, यार कल मैंने उससे पूछा भाई कल पूरे दिन कहाँ थे? अरे कल मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं तो कल पूरे दिन हॉस्पिटल ही था। तो मैं क्या कह सकती? अरे तुम मुझे फोन कर सकते थे।
सो इसको Okay, इंग्लिश you में could क्या have called बनाओगे? me. यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तो मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। मस्ट हैव का मतलब होगा जरूर किया होगा। ही मस्ट हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें फोन जरूर किया होगा। ही मस्ट हैव कॉल्ड। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। वुड हैव का मतलब है कर चुका होगा। कुड हैव का मतलब था कर सकते थे। कर मस्ट हैव का सकते थे, मतलब जरूर किया होगा। मस्ट का मतलब है जरूर। जैसे जरूर किया होगा। ये सेंटेंसेस है हिंदी में, जरा इसको इंग्लिश में ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स टाइम। कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव एंड वुड हैव के ऊपर बेस्ड है। मैम को अब हिंदी में बताइए, हम ट्रांसलेट करेंगे। सॉरी, मैम आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये ट्रांसलेट लिखे तो करेंगे। है, हिंदी में ही तो लिखे हैं। अच्छा, You should have told मैं अच्छा told him. अच्छा I'm तुम्हें giving you 20 seconds time, guys. Everyone, please write all the sentences into your note. ओके ओके। मैं आप नहीं, Okay, okay, Mosina, sorry. Actually, I want to open my video. हाँ, It's fine, ma'am. हाँ, Yeah. Mosina done? Yes, ma'am. Okay, चलो बनाओ। तुम्हें Uh, उससे बताना चाहिए था। you should have talked him, or you should have, yeah, you should have हाँ, talked him. बताना चाहिए था. नहीं, बताने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक नहीं Uh, होता है, टॉक तो बातें करने की इंग्लिश होती है। hmm. टेल, टेल। टोल्ड You should have यू told. स्टार्ट Okay, You should told. have told him. You should have Told him. told him. होल्डिंग। Very nice, very nice. प्रियमदा, We हम, should have we हाँ, should have not make the app. हमें ऐप नहीं बनानी चाहिए थी। हाँ, We should not have make the app. we should not have made Made the app. the app. We should not have made the Made app. the app. Very good. दीप्ति, तुम गेम Uh-huh. जीत सकते थे। You could have One. we won a game. You could have won the game. Very good. मृदुल, वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। Should have. मृदुल, ओके, आई थिंक मृदुल इज नॉट एबल टू स्पीक। ओके, मोसिना, वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। Uh, she could have complained. She could have complained against you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। शी कुड हैव कंप्लेन Should have होगा। अगेंस्ट यू। वेरी नाइस। प्रियमदा, बस अब तक निकल चुकी होगी।
must have. Bus would have left. Bus, Would have left. very nice, very nice. Bus would have left. Yes, मृदुल? मैम मस्ट हो सकता है, मस्ट हैव लेफ्ट। नहीं नहीं नहीं, मस्ट नहीं, जरूर है, जरूर नहीं है ना, बस वो है कि बस अब तक निकल चुकी होगी। बस वुड हैव लेफ्ट। Okay. आपने ये सॉन्ग जरूर सुना होगा, दीप्ति। You might have listened this song. नो नो, जरूर. You must have. Must. you must have must listened. have You must have listened. listened. You must have listened this Listened. song. जब आपने बोला ना जरूर जरूर, so you must have listened. Third form of that. You must have listened this song. In the song. Clear? तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। बनाओ इसकी इंग्लिश। मृदुल, Ma'am, hello. तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। Listen. You should have learned English. Very good, very good. You should have learnt Learned English. You should have learnt English. Right. तुम्हें ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी। Should have learned driving. Yes, you should have learnt driving. You should have learnt driving. So this is the end, and guys, you have to practice.